Good morning, students. Here I Kamal and Sani going to discuss about a new topic, COPD. So COPD is a chronic obstructive pulmonary disorder, or we can say chronic obstructive pulmonary disease. So basically, chronic obstructive pulmonary disease is previously consist of five major disorders. First one, asthma, as we previously discussed in our chapters, that it is a condition in which there is hyperresponsiveness and excessive mucus secretion in the bronchus or bronchioles, which leads to breathing difficulty. So, first asthma, second cystic fibrosis. Cystic fibrosis is a genetic disorder in which the lungs become more fibrous, or we can say there is a reduced expansion power of the lungs due to fibrous or due to scar formation. Next one, bronchiectasis. Bronchiectasis, excessive or inflammation of bronchus, which is characterized by excessive production of mucus that may obstruct the bronchus or bronchioles, or mainly there is a terminal end bronchioles is obstructed by the mucus. Next one, chronic bronchitis. Chronic bronchitis, or also known as chronic obstructive bronchitis, in which there is excessive deposition of mucus which may calcified due to ongoing time or with further time, that may leads to isolate the part of after the obstruction. So this is chronic bronchitis and emphysema. So previously we all known about these five disorder which come under COPD. So now in current time period or nowadays we only consider two disorder in COPD, because above three disorder, one is cystic fibrosis, another is asthma, and one more is there, that is bronchiectasis. These three are completely separated by the COPD due to their characteristics. So because asthma is reversible and bronchiectasis is also reversible, but COPD, when we use the term COPD is a not reversible process, or we can reverse the same lungs structure as normal as we can have previously. So COPD is a irreversible disorder. We can just reduce the speed growth of the disease, but we cannot regrowth or remodified to the previous stage. So recently we are discuss about or reading about two disorder. One is chronic bronchitis and second one is emphysema. So let's see about the definition. Chronic bronchitis, a disease of the airway, is defined as the presence of cough and sputum production for at least 3 months in each of 2 consecutive years. It means when we are having, देखिए दो फिनोमिना है कि आप या तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें या फिर आप यूँ कहें ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस. कंटिन्यूसली कफिंग और स्पूटम प्रोडक्शन, कफिंग विद स्पूटम प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ विद अ कंसेक्यूटिव 2 ईयर, मतलब 2 साल तक लगातार अगर किसी व्यक्ति को महीने में 3 महीने से ज़्यादा खांसी और बलगम आता है तो उसे फिर हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इंक्लूड कर सकते हैं. एक्चुअली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे COPD भी एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है. क्या होता है कि म्यूकस का सीक्रेशन कंटिन्यूसली होता रहता है, ये नॉर्मल फिनोमिना है. और जो म्यूकोसिलरी लेयर्स हैं, जो म्यूकोसिलरी हेयर्स हैं, वो इसको एक्सपेल आउट कर देते हैं, हम उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं. क्या हो जब म्यूकोसिलरी
रेस्पॉन्स जो है सप्रेस हो जाए, आपकी मसल्स वीक हो जाए और आपका म्यूकस प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एक्सेसिव हो जाए, और एक्सेसिव होने के साथ साथ ही सप्रेस एक्शन की वजह से वो बाहर एक्सपेल आउट भी ना हो। उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक म्यूकस जो है एक जगह डिपॉजिट रहता है, और डिपॉजिट म्यूकस की वजह से वो म्यूकस जो है हार्ड होता जाता है, वो म्यूकस जो है वो हार्ड होता जाता है, और हार्ड होते होते वो क्या करता है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और ऑब्स्ट्रक्शन के अगले वाला पार्ट जो है आइसोलेट हो जाता है, उसमें कोलैप्शन ऑफ द लंग्स हो जाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाती हैं, और प्रीवियस वन उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, बिकॉज वहाँ तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ नहीं होता, लेकिन एयर ट्रैवल करती है। तो ये जो पार्ट है ना ऑब्स्ट्रक्शन के बाद, ये साइन एंड सिम्टम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो निल हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये सारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के होने के बाद का फिनोमिना है। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कब कहा जाएगा, कि आपको 2 साल लगातार 3 महीने से ज़्यादा खांसी के साथ बलगम आता है, उस समय हम उस टर्म को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। द मेन थिंग which is responsible is smoking, which is responsible to cause COPD or chronic bronchitis is smoking. Smoking, first, second, pollutant, because 2 factors. Smoking also cause irritation, which leads to produce excessive mucus and inflammatory response. So these whole phenomena, body repairs to इन्फ्लामेशन को रिपेयर करने के लिए, और बॉडी का हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होना किसी इरिटेंट के साथ आने की वजह से। देखो, दो ही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और स्मोक। इन दोनों की वजह से बॉडी क्या करेगी, बॉडी में जाएगा, बॉडी हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शो करेगी, एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, बॉडी में इन्फ्लामेटरी सेल्स मौजूद होंगे, WBC वहाँ ज़्यादा जाएगी, फैगोसाइट्स वहाँ ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, ये सारा फिनोमिना अगर कंटिन्यूस होता रहता है या रिपीटेड फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो ये सारी प्रोसीजर के बाद है ना, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, और वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वंस द बॉडी affect with the inflammatory cells, body have to repair them। ये प्रोसेस जब कंटिन्यूस चलता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं, और यही COPD के अंदर भी होता है इससे, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस में गॉबलेट सेल हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में आपके अपर साइड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना, और म्यूकस सीक्रेटरी सेल्स जो हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, म्यूकस के अंदर जो है WBC की काउंट्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ये पस लाइक अपीयरेंस देता है। तो दो मेन चीज़ हैं, एक तो स्मोक और इरिटेशन, वेदर इट इज़ स्मोकिंग और वेदर इट इज़ इन इंडस्ट्रियल स्मोक, बोथ गोइंग टू लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। Next one, emphysema. Emphysema is a pathological term that describe an abnormal distension of air space beyond the terminal bronchioles and destruction of the wall of alveoli due to recurrent infection। जैसे मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया था कि ये बॉडी का रिपेयर करना और बॉडी का बार बार इन्फेक्शन के साथ कांटेक्ट आना, क्योंकि बॉडी का इन्फेक्शन के साथ कांटेक्ट आया, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली उसको आके रिपेयर करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस ही एम्फाइसीमा है, क्योंकि एम्फाइसीमा के अंदर टर्मिनल एंड और ब्रोंकियोल जो होता है, एसिनस जो होते हैं, इनमें डायलेशन हो जाता है, बॉडी जो है रिकॉइल, आपके लंग्स जो है रिकॉइल नहीं कर पाते, वहाँ पे एक डायलेशन हो जाता है। और डायलेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की मसल जो है वो वीक हो चुकी हैं। ठीक है, और इस डायलेशन ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज नोन एज एम्फाइसीमा। सो इट इज अ पैथोलॉजिकल टर्म बिकॉज
The pathological term is used because we are going to repeatedly the body attempt to kill the inflammatory cell in the defense of the host. So there are two types of emphysema. One is panlobular emphysema and another one is central lobular emphysema. So panlobular emphysema, it means there is a destruction of respiratory bronchioles, alveolar duct and alveolus. पैनलोबुलर में क्या होगा, जो ब्रोंक्यूल्स होंगे, एल्वियोलर डक्ट होगा और एल्वियोलस होगा, उसमें जो होगा वाल जो है वो वाइडन हो जाएगी वहाँ पे. सेंट्रल लोबुलर में आपके जो पेरिफेरल पोर्शन है, एसिनस है, जहाँ पे आपकी एयर रिजर्व्ड रहती है, वो पार्ट जो है आपका सेंटर ऑफ द पार्ट जो है, इट पेरिफेरल मीन्स टर्मिनल एंड एंड विच इज कॉल्ड सेंटर पार्ट ऑफ द एल्वियोलाई. तो वो पार्ट जो है वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा. पैनलोबुलर में उसके जस्ट पहले वाला टर्मिनल एंड्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं. और डायलेशन के बाद रिकॉइल मीन्स लंग्स को वापस उसी स्टेज में आने की जो क्षमता है वो खो देता है. इसी को हम एम्फाइसीमा कंसिडर करते हैं. सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर which leads to COPD? First one, cigarette smoking, both active and passive. Whether the patient is a history of active smoking or whether as a passive smoking. So prolonged and intense exposure to occupational dust and chemical is the second one. Means we are the time duration of exposure, the time duration of exposure with the irritant is more. So this may also leads to COPD because these irritants leads to hyper responsiveness, makes the respiratory tract hyper responsiveness due to irritant or due to chemical. So occupational जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लगातार अगर 8 घंटे तक आपका नॉर्मल है, 8 घंटे तक का एक्सपोजर होता है. अब वहाँ पे अगर आप 60 साल तक काम करते हैं तो आपने अनुमानित जो मानते हैं अपन 30 से 32 साल 34 साल वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ से आप एक्सपोज हुए हो, तो वहाँ पे अगर केमिकल डस्ट ऐसा कुछ होता है तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सही नहीं है. एयर पॉल्यूशन, सेम एयर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम. बिकॉज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है कि आपके लंग्स की पेरेन्काइमा को प्रोटेक्ट करता है. कोई भी इन्फेक्शन आएगा अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है तो वो इजीली एक्वायर्ड कर जाएगा. अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो वो इजीली वो होस्ट क्या है उसके खिलाफ आराम से फाइट कर सकता है. तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जब जिस इंसान में होती है उस इंसान में रेस्पिरेटरी पेरेन्काइमा जो है वो ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट होती है. लास्ट वन, अनदर एलर्जन, वेदर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक और एनवायरमेंटल. So these are the risk factor for the COPD. Then let's discuss about the pathophysiology, how the disease is progress in the human body. So due to all above discuss risk factor, the main thing हमेशा याद रखिए, COPD का नाम है स्मोकिंग. एक सबसे पहला स्मोकिंग और इरिटेशन, ये दो चीज़ें सबसे बड़ी है. तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अकर थ्रू आउट द प्रॉक्सिमल एंड पेरिफेरल एयरवेज. क्या होता है, जो आपका इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, बिकॉज इरिटेशन और आपका स्मोकिंग कहाँ गया, पेरिफेरल एयरवे तक गया. पेरिफेरल एयरवे रन किया आपके एयरवे सिस्टम से और कहाँ तक पहुँचा, पेरिफेरल एयरवे में. तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बॉडी का फर्स्ट स्टेप होता है, द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो गया. दिस में लीड्स टू because of chronic inflammation and body attempts to repair it, change and narrowing occur in the airway. So जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जो मेन फिनोमिना है वो सारा यहीं पे है कि बॉडी में इरिटेशन आया और बॉडी ने उसको रिपेयर किया, बॉडी में फिर इरिटेशन आया, बॉडी में उसने रिपेयर किया. तो ये जब टाइम लंबे टाइम तक चलता है ना तो फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं.
तो इसी तरह से जैसे ही रिस्क फैक्टर के कोई कांटेक्ट में आता है प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो बॉडी क्या करती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अकर करती है थ्रू आउट द एयरवे सिस्टम, और बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लामेटरी response, or you can say body attempts to repair it, change and narrowing occur in the airway. So what are the changes include increased number of goblet cell and large submucosal gland. So these are the two structural changes which happen in the COPD. Next one, both changes leads to hypersecretion of the mucus and inflammation that may cause thickening of the air wall, peribronchial fibrosis and exudate in the airway. So this may leads to due to inflammatory response. Over a time, this ongoing injury, inflammation and repair process cause scar tissue formation and narrowing of airway. जब ये scar tissue formation हो जाता है ना, तब recoil जो पावर होती है, जो elasticity पावर होती है, वो reduce हो जाती है lungs की. सो ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो लास्ट में अल्टीमेटली स्कार फॉर्मेशन आया ना, वो बॉडी लंग्स के एक्सपेंशन को अफेक्ट करता है. बॉडी की लंग्स की वाइटल कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. सो आफ्टर दिस इन्फ्लामेटरी और स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड दिस होल फिनोमिना is going to lead COPD. मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आपने सबसे पहले देखा होगा कि इटियोलॉजिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है. इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बॉडी थ्रू आउट एयरवे सिस्टम में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, और बॉडी का यही रिपेयर करने का जो मेथड है, उसी की वजह से बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर होते हैं. और स्ट्रक्चरल चेंजेस में दो चेंजेस हैं, एक तो साइज इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा गॉबलेट सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा. और उसकी वजह से क्या होता है, दोनों की वजह से क्या होता है कि बॉडी में जो चेंजेस आए हैं टर्मिनल एंड पे, ठीक है, जो चेंजेस आए हैं टर्मिनल एंड पे, ये अगर लंबे समय तक चलते रहें और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहे, तो उस कंडीशन में लंग्स के अंदर स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. और स्कार फॉर्मेशन के बाद बॉडी का लंग्स का एक्सपेंशन पावर रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम COPD कह सकते हैं. सो इन्फ्लामेटरी एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आल्सो अकर इन द लंग्स पैरेन्काइमा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स एंड एल्व्यूलाई, एल्व्यूलर अटैचमेंट एंड डिक्रीज इन द इलास्टिक रिकॉइल. So next about the clinical symptoms. So three clinical symptoms, primary symptoms of the COPD. First one, chronic cough. I told you earlier, that is continuous 3-month coughing with a 2 consecutive year. Cough with sputum production. This we covered in the chronic ब्रोंकाइटिस, डेफिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. तो सबसे पहले क्रोनिक कफ, सेकेंड वन स्पूटम प्रोडक्शन, एंड दिस में अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्निया. सो दीज 3 आर द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द COPD. नेक्स्ट वन, वेट लॉस. वेट लॉस इज अ कॉमन बिकॉज ऑफ डिस्निया इंटरफेयर विद ईटिंग एंड द वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज एनर्जी डिप्लीकेटिंग. बिकॉज आपको लेबर्ड ब्रीदिंग करनी पड़ती है. आपका डिस्निया जो है ना, वो हमेशा एनर्जी डिप्लीकेशन का काम करता है. एक्सेसिव ब्रीदिंग एफर्ट भी एनर्जी डिप्लीकेशन का काम करता है. इसकी वजह से अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है COPD के पेशेंट में देखने को मिलता है. लेबर्ड ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ डिस्निया कंडीशन, बिकॉज ऑफ excessive formation of scar, because of reduced recoil of parenchyma lungs. Next one important classical symptoms, barrel chest. Barrel chest means कबूतर नुमा छाती हो जाती है. एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, अगर मैं एक आपको रेशियो में बताऊं तो आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर है उसका रेशियो होता है 1, और जो आपका ट्रांसवर्स डायमीटर है उसका रेशियो होता है 2. तो 1:2 जो है नॉर्मल चेस्ट का डायमीटर रेशियो है. बैरल चेस्ट के अंदर और COPD के पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, ये जस्ट अपोजिट होता है. एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज्ड बाय 2 एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इज रिड्यूस बाय 1. तो आपकी जो चेस्ट है वो बैरल चेस्ट हो जाती है. सो ये क्यों होता है कि ये एक तो आपकी जो बुल्ले बने हैं ना बॉडी के अंदर, जो
एक्सपेंशन हुआ है मसल्स का, जो आपके ब्रोंक्यूल्स का, टर्मिनल एंड्स का एम्फाइसीमा के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से बैरल चेस्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, रिट्रैक्शन ऑफ सुप्राक्लेविकुलर फोसा अकरिंग ऑन इंस्पिरेशन कॉजिंग द शोल्डर टू हीप अपवर्ड। जब आप अगर सीओपीडी के पेशेंट को फिजिकली ऑब्जर्व करोगे तो अब आप देखोगे कि उसके अंदर जो है यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर फोसा डेवलप हो रहा है, जो यहाँ पे है ना एक खड्डा बनता है, क्योंकि बॉडी को जब प्रोलॉन्ग डिस्निया कंडीशन है तो बॉडी के जो सपोर्टरी मसल्स हैं वो कंबाइंड कम्स टुगेदर एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन, और यही चीज़ जो है बॉडी के सपोर्टरी मसल्स, जो रेस्पिरेटरी सपोर्टरी मसल्स हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, और उसका पहला इंडिकेशन है फॉर्मेशन ऑफ सुप्राक्लेविकुलर फोसा। नेक्स्ट, इन एडवांस स्टेज द एब्डोमिनल मसल्स में आल्सो कॉन्ट्रैक्ट इन द इंस्पिरेशन। अगर जैसे डिसीज प्रोग्रेस करती है तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अदर रिलेटेड साइन इज by the hypoxemia and hypoventilation, because and there is minimized exchange of gases is there is reduced saturation of oxygen in the blood. So these are two symptoms which is further correlated with the or generate another sign and symptoms. So ये सारे symptoms, उसके बाद hypoxemia और hypoventilation से related COPD में और भी काफ़ी symptoms सामने आते हैं। So next one is diagnosis. So history collection. First one, history collection. So first main important thing, history collection regarding smoking, history collection regarding occupational disorder, और माफ़ कीजिए occupational history, because सिंगल मोस्ट मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया था, उसके अंदर है स्मोकिंग। स्मोकिंग के अंदर आप पेशेंट की ब्रीफ हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, कितने साल से स्मोकिंग कर रहा है, इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट के हिस्ट्री कलेक्शन में मेंशन करोगे। ऑक्यूपेशनल डिसीज़, ऑक्यूपेशनल क्या था, किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड था, वेदर द ऑक्यूपेशन इज रिलेटेड विद द केमिकल डीलिंग और विद द इरिटेशन और विद द एनी अदर डस्ट आर देयर इन देयर ऑक्यूपेशन। सो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी आप हिस्ट्री कलेक्ट करोगे। सो नेक्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया था एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर, बैरल चेस्ट एग्जामिन करोगे, प्रेजेंट ऑफ सुप्राक्लेविकुलर फोसा, असेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। So these are the physical these are the indications or sign which we are going to examine in the during physical examination. एक और चीज, साइनोसिस आप एग्जामिन करोगे पेशेंट में। नेक्स्ट वन, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री इज द procedure in which we are going to examine our lungs, or we are giving numbers to our lungs, because we are doing that, we are instruct the patient to inspirate fully and expel forcefully. So during expulsion we are monitoring the power, the intensity of the expulsion of air in the first second. पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप एक गहरी सांस लें और गहरी सांस लेने के बाद आप जोरदार बाहर सांस को छोड़ें, और उस छोड़ने के साथ हम पेशेंट के फर्स्ट सेकंड में अपन रीडिंग को मॉनिटर करते हैं। ये स्पायरोमेट्री होता है। स्पायरोमेट्री से हमें ये पता लगता है कि हमारे लंग्स कितने अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे लंग्स का क्या नंबर है, वेदर दे आर डूइंग वेल और देयर आर सम एबनॉर्मलिटी। सो स्पायरोमेट्री नंबर्स जो है ना COPD के पेशेंट में वो रिड्यूस हो जाता है। Next one, chest X-ray, formation of bullae, formation of these elevations, dilations over the bronchioles, excessive deposition of mucus. These are easily find out in the X-ray, because जहाँ पे mucus excessive deposit होगा वहाँ पे वो cloudy appearance देगा। And last one is the blood examination. So we are going to examine our blood for CBC, ESR, alpha-1 antitrypsin enzyme. So these are the several laboratory investigation we are going to be conduct in the COPD. So management, अगर मैं एक लाइन में कहूँ
तो COPD का कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। हम COPD को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हम COPD को सिर्फ उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं बाय मैनेजिंग द रिस्क। जो भी रिस्क फैक्टर है उससे पेशेंट को आइसोलेट करना है, चाहे वो स्मोकिंग है तो स्मोकिंग से आइसोलेट करना है, चाहे वो ऑक्यूपेशन है तो ऑक्यूपेशन से पेशेंट को आइसोलेट करना। तो रिस्क रिडक्शन इज द फर्स्ट मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ COPD. So smoking cessation is the single most cost effective intervention to reduce the risk for developing COPD and to stop its progress. Next one, bronchodilator. Bronchodilator in the form of tablet, nebulizer or metal dose inhaler. Bronchodilator में एग्जाम्पल हम थियोइटाफिल, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन, साल्ब्यूटामोल और साल्मेट्रोल, सो लाबा, साबा, ये सारे जो हैं ब्रोंकोडायलेटर के रूप में हम पेशेंट को दे सकते हैं। वन मोर, कोर्टिकोस्टेरॉइड। लेकिन कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना, हम सिंगल पेशेंट में तब एडवाइस करते हैं जब हमें साइन जो है वो वर्सन नज़र आए। लेकिन हम शॉर्ट ट्रायल कोर्स ही देते हैं इसमें। अगर हम पेशेंट को ये देते हैं कि बस आपको दिया और आपको एग्जामिन किया, एग्जाम्पल कि कोर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को आपने स्टार्ट किया और उसके बाद हमने ये देखा कि क्या पेशेंट के सिम्टम्स रिड्यूस हुए या नहीं, वेदर पल्मोनरी फंक्शन इम्प्रूव और सिम्टम्स डिक्रीज, क्या आपके सिम्टम्स डिक्रीज हुए या नहीं, और क्या आपके पल्मोनरी हाइपोवेंटिलेशन जो हो रहा था वो आपका इम्प्रूव हुआ या नहीं। हम कोर्टिकोस्टेरॉइड को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं दे सकते बिकॉज ये जो है ना स्टीरोइडल मायोपैथी एक कॉज करती हैं जिसके अंदर मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं। तो COPD के अंदर पहले से जो आपकी मसल्स है वो वीक हैं और हम प्रोलोंग कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे तो स्टीरोइडल मायोपैथी होने की वजह से जो आपकी मसल्स है वो और ज़्यादा वीक हो जाएंगी और रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। एंटीबायोटिक एजेंट्स आर गिवन बट देट आर नॉट मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज वी आर गिविंग to patient for one thing prophylactic basis, or if the patient is having excessive mucus production then to reduce the inflammatory response, उस कंडीशन में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि रिस्क रिडक्शन ज़रूरी है। आपने एंटीबायोटिक पेशेंट को दिया और पेशेंट अगर रिस्क रिडक्शन नहीं कर रहा है तो आप का एंटीबायोटिक किसी यूज़ का नहीं है। अमोक्सिसिलिन इज द चॉइस ऑफ ड्रग, म्यूकोलाइटिक एजेंट, डेक्सोमेथाजोलिन, एंटीटसिव इन द फॉर्म ऑफ कोडीन, देन वासोडायलेटर एपिनेफ्रिन, नार्कोटिक मॉर्फिन, एंड लास्ट वन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। सो दीज आर द मेडिकल इंटरवेंशन फॉर द COPD पेशेंट। एक चीज़ और है कि वैक्सीनेशन में रिड्यूस द रिस्क ऑफ COPD। आप मेरी डेफिनेशन या थॉट उस पर जाएं जो सबसे पहले मैंने आपको बताया लेक्चर में कि बॉडी का इन्फ्लामेशन के कांटेक्ट में आना और रेस्पॉन्स करना बॉडी का उस इन्फ्लामेशन प्रोसेस के लिए, ये लंबी कंडीशन चलना COPD का जनक है या इसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं। वैक्सीनेशन अगर हम किसी चाइल्ड की करवाते हैं तो एक्सपोजर टू द डिसीज़, किसी भी वैक्सीनेशन की बात करूं तो वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है बिकॉज पेशेंट इंडिविजुअल में पहले से एंटीबॉडी मौजूद हैं तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इतना इफेक्टिव नहीं होता कि इन्फ्लामेशन इजीली जो बच्चा है या इजीली कोई इंडिविजुअल है वो उस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो जितना ज़्यादा आप वैक्सीनेशन रहेगा उतना ही आपके इल होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और जितना इल होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे उतना ही COPD डेवलप होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज, सो दिस ऑल अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वन बुलेक्टमी। अ बुले, द elevated part, the enlarged air space is known as bulle. So in bulectomy we have to resect out this bulle part, that is known as bullectomy.
So a bulectomy is a surgical option for selected patient with the emphysema. Bullae are the enlarged air space that do not contribute to ventilation but occupy space in the thorax. These area may be surgically excised. So इसको हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसका कोई रोल नहीं रहता है, ये बस वहाँ फिजिकली प्रेजेंट है और स्पेस को कवर करके रखते हैं, नियर बाय स्ट्रक्चर का भी एक्सपेंशन नहीं होने देते. तो अपन सेलेक्टेड पेशेंट में बुलेक्टमी कर सकते हैं. एंड द अल्टीमेटली लास्ट लंग्स ट्रांसप्लांटेशन. बट लंग्स ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत टिपिकल है क्योंकि पहली चीज़ कि डोनर जो हैं वो बहुत कम है और डोनर कम होने की वजह से क्या है, अपने को लंग्स अवेलेबिलिटी इतनी नहीं मिलती है. तो जब लंग्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो लंग्स ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं है. बट हियर थ्योरेटिकल पोर्शन, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन इज द ऑप्शन फॉर सेलेक्टेड patient because of low availability of the organ due to shortage of donor. So next one about nursing management. So first one, impaired gas exchange and airway clearance due to chronic inhalation of toxin. So we have to manage by evaluate current smoking status and evaluate current exposure to occupation toxin. Next one, impaired gas exchange related to ventilation perfusion inadequacy. Start bronchodilator, evaluate for effectiveness of nebulizer and MDI, instruct patient for breathing coughing exercise, and last, administer oxygen. Ineffective airway clearance related to bronchoconstriction and increased mucus production. So instruct the patient to drink more fluid. So hydrate the patient. Encourage for deep breathing and deep coughing exercise because this will help to defix the mucus from their stick site. Perform chest physiotherapy. This is also helpful to de-stick the mucus. Then postural drainage if possible. So postural drainage, in which we are, with the help of gravity, we can drain out the fluid or mucus by the lungs. Next one, ineffective breathing pattern related to shortness of breath, mucus, bronchoconstriction and airway irritation. So dyspnea is the condition which is happened by excessive mucus deposition and bronchoconstriction. Next one, self-care deficit related to fatigue, secondary to increased work of breathing and insufficient ventilation and perfusion. So yes, जो एक COPD का पेशेंट है वो सेल्फ केयर डेफिसिट होता है, ठीक है, बिकॉज फटीग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज या एक कॉमन कारण है फटीग. फटीग दो वजह से होगा, एक तो आपको ब्रीदिंग के लिए एक्सटेसिव एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं और दूसरा आपका जो परफ्यूजन लेवल है ना वो रिड्यूस हो गया, तो आप बहुत जल्दी आप थक जाओगे. एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू फटीग, हाइपोक्सीमिया एंड इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. So this is all about regarding COPD. If anyone of having any doubt related COPD, you may contact me on my WhatsApp number or you can send a message to me. Thank you. Take care.